हेलो क्लास थर्ड। आज आप कंप्यूटर में स्टडी करेंगे चैप्टर 2 नो अबाउट विंडो 7। तो यहाँ देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न फीचर्स ऑफ विंडो 7, स्टार्टिंग विंडो 7, टू स्टार्ट अ प्रोग्राम इन विंडो 7, टू शट डाउन विंडो 7। A computer is useless without an operating system. An operating system is a software that helps the computer hardware to work along with other computer software. In other words, it creates an environment in which you interact with your computer. The operating system is the most important program as it checks and regulates the various tasks of the computer, such as managing the input-output devices, detecting and correcting hardware and software errors, executing a program, and so on. तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि कंप्यूटर क्या है, यूजलेस है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर क्या करता है, हार्डवर्क के साथ मिलकर के अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ वर्क करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि इट क्रिएट एन इन्वायरमेंट इन विच यू इंटरेक्ट विथ योर कंप्यूटर। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें आप और कंप्यूटर एक क्या करते हैं, मिलकर के कोई वर्क करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम as it check and regulate the various tasks the computer, such as managing the input output devices, detecting and correcting hardware and software errors, executing a program, and so on. तो यहाँ देखिए क्या है, यूजर आप बन जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है, और उसके बाद कंप्यूटर, ये तीनों एक साथ वर्क करते हैं। ओके। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, Microsoft Windows, Apple Macintosh, IBM OS/2, Unix and Linux are example of operating system. And MS-DOS is command line interface based operating system where the user have to type the commands to performing any tasks. तो ये जो ऊपर नेम दिए गए हैं, ये क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद क्या करें, MS-DOS is command line interface based operating system where the users have to type the command to perform any task. Then Windows is a graphical user interface based operating system in which the menus, icons, buttons, dialog boxes, etc. are provided to interact with the computer. The first Windows operating system, known as Microsoft Windows 1, came in the market in 1985. This chapter we will discuss about Windows 7 especially. Okay. तो यहाँ पे क्लियर होगा कि विंडो इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो कि बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच द मेन्यूज, आइकन, बटन, जिसमें ये सारी चीजें रहेंगी, मेन्यूज रहेगा, आइकन रहेगा, बटन, डायलॉग बॉक्स, ओके। एंड द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लॉन्च हुआ है 1985 में। ओके। और इस चैप्टर में आप विंडो 7 के बारे में स्पेशली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है आपका विंडो 7। Windows 7 is made by the world's topmost software development company named Microsoft. It is very easy to use. In this software, we give commands to our computer simply by clicking the mouse button. Okay. तो Windows 7 जो है आपका टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ने बनाया, जिसका नेम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। और ये बहुत ही यूज करने में बहुत इजी है। In this software we give commands to our computer simply by clicking the mouse button. माउस बटन से ही आप कमांड से करके वर्क कर सकते हैं। ओके। Then Microsoft has released Windows 7 in the 6 different edition, namely Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprises, and Windows 7 Ultimate. Though we have various versions
of Windows 8 and Windows 10 available in market, but in this book we will focus only on Windows 7 as it is the most workable version of Windows. Okay, तो यहाँ देखिए मैंने बताया कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किए हैं, रिलीज किए हैं 6 डिफरेंट एडिशन, जिनके नेम क्या है, विंडोज 7 स्टार्टर, विंडोज 7 होम बेसिक, ओके, विंडोज 7 होम प्रीमियम, विंडोज 7 प्रोफेशनल, विंडोज 7 इंटरप्राइज और एंड विंडोज 7 अल्टीमेट। ओके, तो दो भी है और इसके अलावा आपका विंडो 8 भी और विंडो 10 भी है मार्केट में अवेलेबल, लेकिन आपके इस बुक में सिर्फ स्पेशली विंडो 7 के बारे में दिया गया है। ओके, फीचर्स ऑफ विंडो 7, let us study about the main features of Windows 7 which make it so popular। तो इट इज सपोर्ट बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, ये सभी को सपोर्ट कर सकता है जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एक्सेट्रा। देन इट हैज हैंड रिटन रिकॉग्नाइजेशन फैसिलिटी, ये अगर आपकी कोई हैंड रिटन चीज है तो उससे भी ये क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। देन इट अलाउ अस टू रन सेवरल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। ओके, एक ही टाइम में आप कई सारे प्रोग्राम्स रन करा सकते हैं, चला सकते हैं। It has faster networking with other computer and devices. Okay, and it has improved accessories and gadgets. It is very easy to learn and understand. ये सारे क्या हैं, फीचर्स ऑफ विंडो 7 के हैं। ओके, स्टार्टिंग विंडो 7 मतलब आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो एज सुन एज द कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, इट सर्चेस फॉर द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर इन आवर कंप्यूटर। व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाउंड, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है तो इट स्टार्ट लोडिंग इट इनटू इट्स मेन मेमोरी, दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहेंगे। or as a screen appear on the monitor when the computer is ready to work is called desktop। On the desktop, the small pictures which represent different programs are called icons। तो जब आपकी स्क्रीन पर यानी मॉनिटर की स्क्रीन पर जो कुछ आ जाता है वर्क को करने के लिए रेडी हो जाता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर्स दिखते हैं जो जो कि आपके क्या कह जाते हैं, आइकन्स कहे जाते हैं। ओके, और ये आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स के पिक्चर्स होते हैं। एट द लोअर साइड, और नीचे की साइड में, मॉनिटर के नीचे साइड में देयर इज अ बार कॉल्ड टास्क बार, एक बार होता है, एक स्ट्रिप होती है जिसे आप क्या कहते हैं, टास्क बार। Taskbar has a start button on its left side and a notification area showing current date and time on its right side. When a program is opened, its button appears on the taskbar. So if we open many programs together, many buttons will appear on the taskbar। We can switch between these button to move from one program to another। तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट लाइन में क्या है, टास्क बार हैज स्टार्ट बटन, जो नीचे स्ट्रिप होती है उसमें आपको क्या दिखेगा, एक स्टार्ट बटन दिखेगी कॉर्नर में, ठीक लेफ्ट साइड में, और नोटिफिकेशन एरिया दिखेगा किस तरफ, आपका राइट साइड में। तो वहां पे क्या रहेगा, करंट डेट, जो आज की आपकी डेट है वो रहेगी, और क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। तो व्हेन अ प्रोग्राम इज ओपन, जब कोई आप प्रोग्राम ओपन करते हैं तो इट्स बटन अपीयर ऑन द टास्क बार, उसकी बटन जो होती है मेन, जो उसका सिंबल होता है नीचे टास्क बार में शो होता है, ठीक है, दिखता रहता है। तो सो इफ वी ओपन मैनी प्रोग्राम टुगेदर, अगर एक साथ आप कई सारे प्रोग्राम्स ओपन कर लेते हैं तो कई सारे बटन्स भी क्या होते हैं, नीचे टास्क बार में शो होने लगते हैं। नीचे आपने सिस्टम में देखा होगा, बुक में देखिए दिख रहा होगा, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, वहां फिगर से आपको समझ में आएगा। वी कैन स्विच बिटवीन दीज बटन्स टू मूव वन फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर, और आप किसी भी प्रोग्राम को स्विच ऑफ कर सकते हैं किसी भी टाइम, और या फिर किसी दूसरे प्रोग्राम पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। टू स्टार्ट अ प्रोग्राम इन विंडो 7, आप विंडो 7 में कोई प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो वी कैन स्टार्ट एनी प्रोग्राम इन विंडो 7 यूजिंग द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इज नोन एज द गेटवे टू विंडोज application। When the start button clicked
a menu is open called start menu. This menu is divided into two parts. The left pane allows the access to the various application or program, and the right pane to use features like control panel, libraries, etc. ओके, तो आपका क्या कहते हैं, वी कैन स्टार्ट एनी प्रोग्राम इन विंडोज 7 यूजिंग द स्टार्ट बटन। अगर आपको विंडोज 7 में विंडोज 7 को अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए कहाँ पे जाना पड़ता है, आपको स्टार्ट बटन पे जाना पड़ता है। और स्टार्ट बटन को आप क्या कहते हैं, गेटवे टू विंडो एप्लीकेशन। ओके, व्हेन द स्टार्ट बटन इज क्लिक, जब आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक मेनूज आपका ओपन होता है जिसे आप क्या कहते हैं, स्टार्ट मेनू। दिस मेनू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और आपका ये मेनू टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेफ्ट पेन अलाउज द एक्सेस टू द वेरियस एप्लीकेशन। लेफ्ट पेन में आपको डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम मिलेंगे, और राइट पेन में आपको उनके फीचर्स मिलते हैं जैसे कंट्रोल पैनल या फिर लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। ओके, टू ओपन नोटपैड प्रोग्राम, कैसे आप नोटपैड प्रोग्राम ओपन करेंगे, सेट सॉरी फर्स्ट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन आपको सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम टू ओपन द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। इसकी एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ लास्ट में बना के शायद आपको मिल जाए। ओके, इसी वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल सकती है, नहीं तो कोई बाद में एक अलग वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। स्टेप थर्ड में क्या करना है, आपको चूज एसेसरीज ऑप्शन में जाना है आपको। ओके, देन वहां पे आपको एसेसरीज में आपको नोटपैड मिल जाएगा। नोटपैड प्रोग्राम will open in a new windows and its button appear on the taskbar. Each windows that is open has a title bar on its top. It shows the name of our program on one side of it and three control button on the other side ऑफ इट। ओके, तो जब आप नोट प्रोग्राम कोई ओपन करते हैं तो एक न्यू विंडोज का मतलब, जब नोटपैड प्रोग्राम का आप कोई न्यू विंडो ओपन करते हैं एंड इट्स बटन अपीयर ऑन द टास्क बार, तो टास्क बार पे इसकी बटन आ जाती है, दिख जाती है। ओके, एक सिंबल बन जाएगा। और इस विंडो दैट इज ओपन, कोई विंडो जब आप ओपन करते हैं तो हैज अ टाइटल बार ऑन इट्स टॉप, इसका टाइटल बार कहाँ पे दिखता है, टॉप पर दिखेगा। ओके, सबसे ऊपर। और इट शोज द नेम ऑफ आवर प्रोग्राम, और ये क्या बताता है, हमारे प्रोग्राम का नेम बताएगा ऑन वन साइड ऑफ इट एंड थ्री कंट्रोल बटन, और क्या कहते हैं, एक साइड में आपकी थ्री कंट्रोल बटन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट रहता है मिनिमाइज बटन, तो एक माइनस जैसा जो साइन होता है वो आपका मिनिमाइज बटन का होता है। ओके, तो दिस बटन इज यूज टू मिनिमाइज द साइज ऑफ आवर विंडोज। द विंडोज रिड्यूस अप टू द साइज of the button on the taskbar, or this windows can be restored by clicking its button on the taskbar. Then a maximize button, this button maximize the size of the windows to cover full monitor screen। उसके बाद जो सेकेंड दिखती है, तीन दिखती है, एक माइनस दिखेगा, क्रॉस दिखेगा, और आपका एक स्क्वायर जैसा दिखता है, तो ये स्क्वायर वाली बटन क्या होती है, आपकी मैक्सिमाइज विंडोज बटन होती है। ओके, और इससे क्या होता है, आपके फुल मॉनिटर पर आपका स्क्रीन आने लगता है, फुल स्क्रीन आ जाती है मॉनिटर पर। और थर्ड होता है क्लोज विंडो, जो क्रॉस वाली होती है। ओके, दिस बटन इज यूज टू क्लोज द विंडो, और इससे क्या करते हैं, अगर आपको विंडो क्लोज करना है प्रोग्राम, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट है आपका टू शट डाउन विंडोज 7। कैसे विंडोज 7 को आप शट डाउन करते हैं, बंद कैसे करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शट डाउन विंडोज 7 प्रॉपरली। ओके, और इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप यूज करने हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे जाना है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लिक शट डाउन बटन। ओके, इन द राइट पैन ऑफ द स्टार्ट मेनू। देन क्या करना है आपको, द शट डाउन बटन शो सम अदर ऑप्शन, शट डाउन बटन में अदर ऑप्शन भी आपके आएंगे। क्लिक द ट्रायंगल साइन ऑन दिस बटन, और उसमें जो ट्रायंगल टाइप का जो साइन होगा उसे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और इससे क्या होता है, स्पैंड द ऑप्शन, ऑप्शन थोड़े से आपके स्पैंड बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं।
चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड शट डाउन योर कंप्यूटर। और जो भी आप अप्रोप्रिएट यानी जो भी आप चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं, वो सारा आपका वहां पे रहता है और आप इस तरीके से अपना सिस्टम शट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ओके, तो आपकी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी कुछ दिनों के बाद। ओके।